हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशंस का आज थर्ड डे है। आई विल ट्राई टू द पास्ट डे से आज बेटर इस पब्लिक स्पीच स्पीच पे इंग्लिश करने का, जिससे कि मैं अपने आप को और बेटर टू बेटर अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और बेटर कर सकूँ विच द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी मेरे पास जो कुछ पे मैं उस पर ऐसे ही बस बकवास करूँगा, तो जिनको नहीं सुनना है वो कृपया बच चले जाएँ। प्लीज़ यू कैन गो एंड not interested, which are the not holding this to my video. So start. As you know, my name is Anish Kumar Maurya and I am belonging to the UP Sonbhadra. I am recently started preparation of UPSC. First of all, I talk to you my background. My background have not a very not a very special, just common. I am high school and intermediate pass out in my village, my village schools, and graduation is the continue in the near about government college MBBU. तो तो अभी सडनली कुछ ऐसा नथिंग अभी माइंड में आ नहीं रहा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकूँ, बट आई विल ट्राई टू मैं कंटिन्यू कम से कम 35 मिनट ऐसे कुछ ना कुछ बातें करता रहूँ, जिससे इससे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके यू आर ट्राई टू द some things to have some after some time या फिर गैपिंग ऑफ द टाइम्स have to the improvement in yourself selves. तो that's I am noticing in myself कि after some times I will try to the speech English. तो something improvement in my body and personality and the mind structures program ki how to be the word select and to pronunciation in the matters called situations conditions to be the how to the suitable and proper and best word how to be used in this public public speaking and फिर speech English. तो I can under it is a process of long term, but have कि I can do it because day to day time and time I am improvement itself improvement automatically, and not automatically, but I am practice and I exercise the other side, जैसे कि like वर्ड मीनिंग को लर्न करना एंड प्रैक्टिस करना एंड वैसे भी आई कैन स्टडी द यूपीएससी इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो सो it have sufficiently helpful to in my life to improve the English speaking. तो first of all, I can reduce my fever नहीं fears to speech English. So you can understand how to be the study hesitations and the frustration कि how to say the people and understanding in your perspective in your perspective to you. So I can design and I can don't mean up the any persons how to with understand me and opinions. So I just relax and try to the best because कुछ है कोई कुछ भी बोले I will try to the बोले speech English क्योंकि because I know about कि in my future in this platform. तो thank you कि you are very patiently listening to me and supported multiple persons, and I have a sweet person have to supported me and ऐसा नहीं बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए. बट आई विल ट्राई टू द बेस्ट एंड बेस्ट. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहने आता. अभी रिसेंटली ऐसे हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बुद्धा के ओपिनियन पे और हिंदू कास्ट के रिलीजियस पे. तो जैसा कि भी देखा जाए कि जो एज कैन सी यू, जैसे कि हम सभी देखते हैं, जैसा कि हम सभी हम वी कैन सी यस.
Buddha was Buddha was transformations of life and human society in the biggest sector have to the multiple and followers and followers to be the adopted of the Buddha thought and path and and thought to be the go through the your path your path. Why it is the reason of Buddha follow, तो उनके लिए उनके फॉलो करने का रीज़न क्या, बिकॉज आई हैव टू द एट सम डिफाइंड टू द एट पार्ट हैव टू द देवर equal opportunity, equal value or equal they have not to the special. She are always thinks you are a god gifted persons, right thought. और फोर्थ क्या है कि ऑलवेज अगर आपको फ्री इन द लाइफ है, फ्री इन द इमॉर्टल सोसाइटी और द इमॉर्टल, या फिर कह सकते हैं कि नश्वर या फिर माया से मुक्त होने के लिए उनका जो पाथ है तो बहुत ही नाइस पाथ है। और हैव टू द मल्टीपल चीज़ें जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं पीपल्स को, और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं उनके अंदर। अभी मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा फैक्ट और फिर वीडियो लाऊंगा तो फिर उस पर मैं बात करूँगा। और यही और जो उनका कल्चर है तो वेरी मस्त नाइस और जो उनका कल्चर है वो द वेरी रिच एंड रिच एंड डाइवर्सिबल कल्चर्स है टू द ऑल पर्सन हैव टू गिव इन रिस्पेक्ट एंड कलेक्टेड में एक तरह से कलेक्टेड नहीं कह सकते हैं। वेरी मैनेजफुल कल्चर एंड द कम्युनिटी to approach the all lower middle class ST SC and scheduled class जिन्हें हाई लेवल या फिर हाईएस्ट कास्ट के पर्सन आर नॉट इक्वल ट्रीटेड। तो देन जितने भी होते हैं लाइक जो ज्वाइन द बुद्धा, what is the reason of Dr. Bhimrao Ambedkar? Why join the Buddha? First of all, you are trying to the 100% came 100% to reform and revolutions of the his persons, his category person to in the Hindu dharma, but not successful because you are given 100% effort but not improvement. You know about the deeply and long and have to the vision of 100 to 1000 years of, so you can understand that they have not to the change it. So you can join the Buddha and he said that my biggest he can say he said that कि my biggest mistake in this the agreement of the Mahatma Gandhi and Dr. Bhimrao Ambedkar because Ambedkar wanted to be the separate elector of his community and his community their community and their groups के लिए, but Mahatma Gandhi not accepted the electoral because he said that कि all persons of the Indian have a Hindu that not they are not the separate which are the separate होने से उनके अंदर क्या होगा कि वे नहीं चाहते थे कि have to the part of the India divided. So he is the fast और उन्होंने फास्ट और वे फास्ट रख लेते हैं, मतलब कि फास्ट रख लेते हैं जिसके कारण से ये हेल्थ इज वेरी crucial to the
वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल हेल्थ, उनका हेल्थ जो तो बहुत ख़राब होने लगता है। तो सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंडर द प्रेशराइज एंड पॉलिटिकल प्रेशर एंड अदर कम्युनिटी प्रेशर की गांधी हैज स्टेट द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टार्ट इन द सोसाइटी इन दिस country because because started a revolt, a strike, and unfair treatment to the your people in society. Always think, always times. So just manage and cooperate the situations and handle your kingdom and wisely. Your wisely. तो so Dr. Bhimrao Ambedkar accepted the your opinion है Mahatma Gandhi have to the offer to given the reservations and reservation to the your community and society have the they given a privilege to the some क्या almost everything is a sectors your community and your people disadvantage ST SC women's right. तो right. So why are you called the Bhimrao Ambedkar? It is the god of the STSC because Bhimrao Ambedkar it is the questions in his your community and STSC and disadvantaged peoples to his according to the drafted and making the reserve and given the fundamental right duties for his persons, not our constitutions, not our veterinary aristocracies, nahi dictatorship. Our constitutions it is the like a special term which is include all things about which your problems and how to be reduced and how to be reformed and how to be the handle this every situations लाइक एज जैसे कि बताया जाता है कि हिंदू धर्म में कई सारे देवता वगैरह होते हैं या फिर उनका सबका अपना अपना काम होता है। उसी तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को मेकिंग फार्मिंग किया है। लाइक एज कि आपके स्टेट में कौन कौन से लेवल है, आपके स्टेट में कौन कौन से ब्यूरोक्रेसी रहने वाला है या फिर ऑफिस रहने वाला है या फिर हेड रहने वाला है। तो लाइक एज जैसे कि प्रेसिडेंट जो और इंडिया का जो सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो जो कौन हैंडल करता है, कौन ऑफिसर्स होता है, कौन एग्जीक्यूटिव होता है, सबसे पहले आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पे अटॉर्नी जनरल आते हैं, फोर्थ पे आते हैं हमारे प्रेसिडेंट आते हैं लाइक प्रेसिडेंट आते हैं। फिर उसी तरीके से डेट इज द सेम टर्म ऑफ द स्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर गवर्नर के बाद क्या आएंगे सीएम आएंगे, सीएम के बाद आएंगे सीएम के बाद क्या आएंगे और सारे जो ब्यूरोक्रेसी एक्जीक्यूटिव आएंगे वो सभी आएंगे। द एक्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नर होता है ऑफ द स्टेट का स्टेट जिसे हम चीफ हेड भी कहते हैं बिकॉज चीफ हेड की जो सैलरी होती है 350 lakhs होती है पर मंथ। तो है वेरी नाइस सैलरी ऑफ द गवर्नर बट जो वर्क जस्ट ऑन द agent of the president and prime ministers have to the always things is work on advice on the given suggestions or the recommendation to the prime minister या फिर vice president. So it is called the governor it is the agent of the central government right. तो अभी और किस मुद्दे बात कर सकते हैं ऐसी बस बात करना तो आई हैव नॉट थिंकिंग अबाउट मच मोर के व्हाट इज दिस मैटर्स एंड ओपिनियंस. So I can explain you कि how to be work of mobile phone and laptop and communication system and navigation system, how to be the detected to be the your friends and your colleagues have to the UP फिर महाराष्ट्र and गुजरात या फिर how to be the communicate to the village. अब गाँव से होकर कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं इस चीज़ को आया टुडे आई कैन एक्सप्लेन यू. सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूनिवर्स को जानने के लिए कि यूनिवर्स को जानने के लिए हमें समझना होगा कि यूनिवर्स होता क्या है. तो अभी तक जितना ऑब्जर्वल पार्ट है या जितना भी ऑब्जर्वल पार्ट है जितना भी यूनिवर्स को हम समझ पाए अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेबल पार्ट इन द स्पेस ऑफ यूनिवर्स. तो हैव टू द
multiple secrets and adventure of the universe. So this topic was the very much wider, so can I can just coming through the if I point my point. तो साइंस सेंट्रिक में एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमें ये बताता है कि हम कैसे हम ऑर्बिट जो होता है, जितने भी हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो किस ऑर्बिट में होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो रिमोट सेंसिंग विच आर द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इट इज द ऑब्जर्वर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्ड बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर ऑर्बिट। जो हमारा अर्थ होता है have it is its own earth have to the two polar orbit north and south। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द पोलर ऑर्बिट है राउंडिंग टू द 90 डिग्री और एक होता है जिसे हम इंटरनेट सैटेलाइट कहते हैं। थर्ड है द स्पेस स्टेशन। फोर्थ है द गगन मिशन। फिफ्थ इज द एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कॉल्ड द स्पेस और satellite के स्पेस में what happened in the space like two neutrons अथवा two black holes merge and collapse and galaxy how to be the distances from the each other। so कैसे जा रही है वो अपने each other how to the expand of universe and what is the galaxy planet solar systems, how many detected to be the moons in this asteroids or the planets like। तो अप्लीकेशन अब हम देखते हैं कि अप्लीकेशन ऑफ द अभी हम देखा कि लो अर्थ ऑर्बिट में लो अर्थ ऑर्बिट में क्या आता है। लो अर्थ ऑर्बिट में क्या आता है। लो अर्थ ऑर्बिट में फर्स्ट ऑफ ऑल रिमोट सैटेलाइट विच आर द नेम ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर ऑर्बिट राइट। सेकंड इंटरनेट सैटेलाइट। थर्ड स्पेस स्टेशन हाउ टू बी द बिल्डिंग स्पेस स्टेशन या फिर हाउ मेनी स्पेस स्टेशन हाउ मेनी country have possesses गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। सेकंड मिडिल अर्थ ऑर्बिट के मिडिल अर्थ ऑर्बिट में क्या क्या होता है। ग्लोबल नेविगेशन होता है, सैटेलाइट होता है, जीपीएस गैलियो एलमार कंपास होता है कि जीपीएस जो होता है यूएसए का है, गैलियो जो है गैलियो आई कैन रिकॉल जस्ट आई कैन टेल यू एप्लीकेशन ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जीएसओ। application of the geosynchronous orbit application how I can understand how the geosynchronous orbit जो होता है beyond the middle earth orbit अर्थ के ग्राउंड लेवल से टू द डिस्टेंस ऑफ 35,786 किलोमीटर्स कम्युनिकेशन सेटेलाइट। और इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या क्या होता है कम्युनिकेशन सेटेलाइट वेदर सेटेलाइट और रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट। थर्ड आते हैं जियो स्पेसिफिक में कम्युनिकेशन, यानी कि हम जितने भी लोग एच अदर से या फिर कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया कॉलिंग से या फिर व्हाट्सअप या फिर एनीथिंग अबाउट टू ईच अदर कम्युनिकेशन सिस्टम टू ईच अदर एंड द डिस्टेंस प्लेस और द अदर कंट्री तो अनदर ईच कंट्री या फिर ईच अदर पर्सन have to support of communication satellite और वेदर forecasting have to the suddenly या फिर have to the idea for 10 days या फिर 7 days before को what happened in this environment and where is coming soon the monsoon किधर से आएगा and how many outflow of the wind how many outflow fast in the wind heavy rains in some area या फिर coast या फिर dry how many days या फिर inch in rain in this area या फिर how the falling in the ice in the sky and where is the coming cyclones and earthquake how many the problem of created the earthquake
blunt in the all things about of knowledge weather satellite is providing, right? Regional navigation satellite like called navic regional navigation satellite is detected to the या फिर identified या फिर called as the where is your locations, and in this present side out of the survival and living like living या फिर today in this present times out of the present and multiple and diverse use of the geosynchronous orbit because there are three types of satellite in the present: communication satellite, regional satellite, or weather satellite. और हम इसका क्लास सेटेलाइट का हम क्लासिफिकेशन करके ऑर्बिट का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन दिस ऑर्बिट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स कि उनका शेप क्या है, आकार क्या है, और तीसरा कि ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है, और तीसरा इंक्लिनेशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द शेप के अकॉर्डिंग तो सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। I can go through this topic and explain the circular orbit and elliptical orbit. Second, what is the LEO MEO और altitude के according I can re-explain LEO MEO GSO और MEO होता है। और एक और हेलो अर्थ ऑर्बिट होता है। एंड थर्ड क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन ऑर्बिट। या थ्री टाइप्स, इक्वेटोरियल ऑर्बिट के जो हमारा इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, जो डिवाइड करता है 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक होता है, राइट। इनक्लाइंड ऑर्बिट इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, और पोलर ऑर्बिट जो होता है इनक्लाइंड को 90 डिग्री। पोलर ऑर्बिट, राइट, आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा अर्थ है तो यहाँ पे जो हमारा साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो इनके बीच का जो ट्रिंगल आएगा वो 90 डिग्री का आता है। तो इसलिए हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं। पोलर ऑर्बिट कितना होता है हमारा 90 डिग्री, इंक्लाइन 90 डिग्री का होता है, जिसपे कौन से सेटेलाइट प्रेजेंस होती है, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट होती है, जिसे हम अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट कॉल्ड कहते हैं। और इट इज द वर्क ऑफ मल्टीपल एंड डाइवर्सल। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू द इन अर्थ इन इट्स आवर लाइफ। तो जस्ट आई एक्सप्लेन यू। इसके बाद सम अदर स्पेशल ऑर्बिट भी होते हैं। यू कैन सी कि व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस एंड वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदर स्पेशल सेपरेट में आता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है इट इज इंक्लाइंड नेचर का होता है, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है यह इक्वेटोरियल टाइप का होता है। इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है ऑर्बिट का जो होता है जो इसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है जीएसओ या फिर जियो का, या रोटेशन पीरियड और देखिए रोटेशन पीरियड का इक्वल होता है 24 आवर्स में होता है, और 24 आवर्स में होता है। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में क्या होता है, जैसे भी ऐसे जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, इट इज द ऑर्बिट ऑफ सेटेलाइट पासेस ओवर द प्लेस ऑफ सेम लोकल एज टाइम्स। कैसे, हाउ टू बी द कैसे आप देखते हैं कि मैं कैसे आपको ये समझा हाउ कैन बी अंडरस्टैंड टू यू आई जस्ट अबाउट थिंक, राइट। तो यू कैन रिमेंबर राइट, या फिर यू कैन लिसनिंग द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैड गॉन टू द अमेरिका वह अमेरिका गए थे, एंड उन्होंने देखा कि वहाँ पे भी जो भी हमारा स्पेस सिस्टम था कि वहाँ के जो भी सैटेलाइट थे वो अर्थ के ऑर्बिट से कब होकर गुजरते और कितने बजे होकर गुजरते। फिर वहाँ से वी कैन सी एंड स्टार्टेड द क्रिएटिंग और द फॉर्मिंग या फिर मेकिंग द एटॉमिक बम। तो वी कैन अंडरस्टैंड द हाउ टू सेटेलाइट जो अर्थ की ऑर्बिट होती है वो जो हमारा इंडिया है, इंडिया के ऊपर से कब हुआ कितने बजे गुजरती है, दैट इज प्रिपेयर एंड दिस स्टार्टेड। सो इसी तरीके से सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होता है जो हमें यह बताता है कि
यह सेटेलाइट ओवर अ प्लेस सेम लोकल टाइम्स, वह प्रत्येक प्रत्येक दिन एवरी डे सेम पास होता है एट लोकल टाइम पे। यानी कि अगर अगर यह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सेटेलाइट है, अगर वह मॉर्निंग में 6 AM पे, मॉर्निंग 6 AM पे अगर वह गुजरात से पास थ्रू होता है, तो सेम उसी टाइम पे नेक्स्ट डे पास थ्रू होगा, राइट। जियो सिंक्रोनस ट्रांसवर्स ऑर्बिट क्या होता है? यह इलिप्टिकल इन शेप का होता है। फ्लो सेविंग ऑर्बिट होता है। इंटरमीडिएटरी ऑर्बिट होता है। दिस ऑर्बिट यूज्ड टू लॉन्च सैटेलाइट इन द एमईओ जीएसओ एंड अदर प्लैनेटरी मिशंस। इसे हम स्लिंग शॉट मिशंस कहते हैं। टाइमलाइन ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडिया। कैसे टाइमलाइन का स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है इंडिया में? इंडिया स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट ISPRB लेड बाय विक्रम साराभाई एम टू द प्रमोट द डेवलपमेंट एप्लीकेशन से स्पेस साइंस फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अदर आउटर स्पेस मोस्ट वनली बी यूज इन द फॉर पीस के लिए, यानी कि आउटर स्पेस मस्ट बी यूज इन पीस के लिए। एंड बिल्ड सेफ रिलायंट ऐप ऑपरेटिव स्पेस सर्विस के लिए। सेल्फ रिलायंट ऑपरेटिव स्पेस सर्विस के लिए उन्होंने क्या किया था कि इंडिया ISRP प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। ISRP फुल फॉर्म हैज़ बिन द इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद 1962 का टाइम आता है, जिसे इग्नू स्पार कहा जाता है, जिसे फार्मूलेट किया था ISRP से ही फार्मूलेट किया गया था, लेड बाय द विक्रम साराभाई के थ्रू। फिर आता है 1969 में, जहाँ पे इसरो का फॉर्मेशन होता है। इसरो का फॉर्मेशन TERLS से होकर किसका फॉर्मेशन होता है? इसरो का फॉर्मेशन 15 अगस्त इसरो का फॉर्मेशन 1969 में, जिसपे हम सुपर कार्ड इग्नू स्पार फार्मूलेट कहते हैं। इग्नू स्पार का सुपर सीडेड फार्मूलेट बनता है, वो स्पेस प्रोग्राम फॉर इंडिया होता है। स्पेस प्रोग्राम फॉर इंडिया इसरो होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होता है। इसरो बट अंडरडॉस और इसरो इज द अंडरडॉस। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनता है। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ म्यूथ है, जिसमें सेट ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो DOS है यह किसके अंडर में रहता है? यह प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहता है। और 1992 में हम एक अपना अंतरिक्ष कॉर्पोरेटिव लिमिटेड का कमर्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मार्केट। और 1992 में आते आते आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर हमें स्पेस में बहुत बड़ा बवाल या फिर भौकाल मचाना या फिर एक्सप्लोर करना है, नई नई चीज़ों को सीखना है टू द फास्ट इन दिस अदर कंट्रीज है टू द इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल विंग या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए फॉर द फॉरेन मार्केट इन द ओपन्स एंड अवार्डिंग मिनी रत्न status in the 2028 by the government of India, help in communicationalization and promotion of the space product, technical communication consulting service, transfer of the tech development of ISRO. And 2029 में commercial marketing of ISRO is the domestic market wholly owned by the government of India company under DOS, the Department of Space, manufacturing satellite launch vehicles, plans, launch events, market all space product service to domestic market and comes under the depth of the space, राइट। एंड INSP की बात आती है, इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोराइजेशन 2020 सिंगल विंडो के क्लियरेंस एंड ऑथोराइजेशन एजेंसी फॉर एनी काइंड ऑफ द स्पेस। to do sufficient and tomorrow I will discuss the next video next topic. Thank you.